नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम दीपक है। आप लोगों के बीच में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है ये रिवीजन क्लास केमिस्ट्री क्लास 10th की है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और ये जो वीडियो होगी वो सीबीएसई बोर्ड और यूके बोर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देखने के लिए मिलता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है कि आइडेंटिफाई फॉलोइंग सॉल्ट या आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। तो हाउ वी आइडेंटिफाई which salt is basic in nature and which salt is acidic in nature. Now let's start. First of all, we try to understand what is the strong acid and what is the weak acid. What is the strong base and what is the weak base. First of all, we try to understand what is the strong acid. So strong acid is such type of acid which completely ionized, which completely dissociated in water. Second things we have that is the strong base. Strong base में भी वही चीज होती है कि such type of base which completely dissociated, which completely ionized in water solution या in water. Second things we have that is the weak acid which does not completely ionized या which does not completely dissociated in water. Such type of acid and base is known as weak acid and weak base. First of all, we try to remember that which acid is strong and which base is strong. Here, HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, and HNO3. HCl, hydrochloric acid, H2O4, sulfuric acid, and HNO3, nitric acid. These three major strong acid. Second things we have that is the strong base जिसमें आपके पास KOH, NaOH, potassium hydroxide, sodium hydroxide and calcium hydroxide. These three base is the strong base. Third thing we have second things weak acid. Weak acid just like a acetic acid and carbonic acid. And weak base में अगर हम देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो दिस you have to remember these all acid and base, which acid is strong and which acid is base. Then you have to able to solve this type of equation, how to identify the nature of salt. Second things we have that you have to remember this reaction. This is very important reaction, and this reaction is known as neutralization reaction. In neutralization reaction, when acid react with base to produce salt and water, acid react with base to produce salt and water. And you have to remember also these things when a strong acid react with a strong base to produce neutral salt. We have to remember that when strong acid यानी कि जो आपके पास कोई strong acid है उसकी रिएक्शन अगर हम किसी strong base के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो है न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है. अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमारे पास है HCl की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराएं तो हमारे पास NaCl बनता है. यहाँ पे देखो अगर हम HCl की बात करें तो हमें पता है HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. और यहाँ पे NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट मिलता है उसका नेचर जो है कैसे होता है बेटा, न्यूट्रल होता है. आपको ये याद रखना है कि उसका नेचर जो है न्यूट्रल होता है. अब हमारे पास जो है सेकंड थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर दैट अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ कराते हैं यहाँ पे यहाँ अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो सॉल्ट मिलता है उसका नेचर जो है एसिडिक होता है. अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया like a HCl, hydrochloric acid, that is the strong acid, and ammonium hydroxide, that is the weak base. When hydrochloric acid react with ammonium hydroxide to produce अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का अगर हम नेचर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो इसका जो नेचर होगा, इसका नेचर कैसे होगा बेटा, एसिडिक नेचर होगा. कैसे होगा, एसिडिक नेचर होगा.
क्यों? क्योंकि ये जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में रिएक्शन करके बनाया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन अगर हम आपस में कराते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट कैसे बनता है बेटा? बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, वो बेसिक सॉल्ट होता है। हमने क्या किया, एक वीक एसिड लिया लाइक का कार्बोनिक एसिड। अगर हम इसकी रिएक्शन जो है यहाँ पे NaOH के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो है NaHCO3 बनता है, यानी कि हमारे पास बेकिंग सोडा बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। तो अब इसका नेचर अगर हम देखें तो इसका नेचर कैसे होगा? बेसिक इन नेचर होगा। इसका नेचर जो है हमारे पास कैसे होगा? बेसिक इन नेचर होगा। बेसिक इन नेचर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एसिड था वो वीक एसिड था और जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग बेस था। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन आपस में होती है तो जो सॉल्ट हमें मिलता है दैट इज द बेसिक सॉल्ट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट एज पर द पीएच वैल्यू इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों टाइप से आपके पास आता है। लेकिन उससे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि भाई कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर बेसिक इन नेचर होता है, और कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसे होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई बेसिक कोई मेटल ऑक्साइड, जैसे हमारे पास MgO है, तो इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, ये बेसिक होगा। अगर इसकी रिएक्शन हम जो है किसी आपके पास जो है किसी एसिड के साथ कराएं तो हमारे पास वहाँ पे भी जो है सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? MgCl2 और MgCl2 प्लस वाटर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो CBSE 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट एज पर द पीएच वैल्यू। भाई पीएच वैल्यू हम सबकी याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सॉल्ट का नेचर कैसे होगा, इसको हम आराम से जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है अमोनियम क्लोराइड है। अभी मैंने आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड की एक रिएक्शन यहाँ पे बताई है कि जब अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा। अमोनियम क्लोराइड जब हमने क्या किया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई होगी, तो हमारे पास जो मिला वो था अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का नेचर कैसा है बेटा? एसिडिक, यानी कि अमोनियम क्लोराइड हमारे पास कैसे है? एसिडिक है। और हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना होगा इसको देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, तो हमारे दिमाग में झट से आया होगा कि भाई ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा इसमें जो है आपके पास एक तो CaOH है ना होल ट्वाइस, और प्लस जो है H2CO3। इन दोनों के आपस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ पे बना होगा। अब देखो यहाँ पे आपको COH का होल ट्वाइस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने के लिए मिल रहा है। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर जो है आपके पास बेसिक है, और कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जो आपके पास है H2CO3 कैसा है? आपके पास वीक एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं तो हमारे पास जो है बेसिक सॉल्ट मिलता है। तो यानी कि इसका जो नेचर होगा वो कैसे होगा बेटा? बेसिक होगा। और NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl हमें पता है न्यूट्रल है। अब देखो यहाँ पे पीएच वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? पीएच वैल्यू सबसे, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा जो पीएच वैल्यू होगी वो बेसिक सब्सटेंस की होगी, यानी कि सेकंड वाले की जो है पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और फिर जो है आपके पास न्यूट्रल सब्सटेंस जो है उसकी होगी, है ना, यानी कि 3, और फिर आपके पास जो है किसकी होगी? 1, यानी कि जो आपके पास एसिडिक था। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन में, और अच्छे से नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और बच्चे जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में छोड़ देते हैं। तो अभी जो है आप लोग इस पूरी वीडियो को रिवाइज कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।